Good morning, class. Now let's start our next chapter, exponents and powers. In this chapter, we'll be understanding what are exponents, what are powers, what do you mean by exponential form, laws of exponent, and scientific notation of rational numbers. Let's start. Now, the title of the chapter is Exponents and Power. First, we should understand what is the meaning of exponent. So, as you can see here, the definition is an exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. Let's understand it by an example. Suppose we are having a number 5 into 5 into 5. Here we can see that 5 is being multiplied 3 times. Now instead of writing 5 again and again, we can also write it as 5 to the power 3. In mathematical form, it is read as 5 raised to the power 3 or third power of 5. But the normal standard form is we read it as 5 raised to the power 3. Now here, this 5, which is the main number, it is known as base, while the number which denotes that this base is being multiplied how many times is known as exponent or power. So now if we look to the definition says what? An exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. Now this is the number and it is multiplied by itself only, 5 into 5 into 5. Now how many times this 5 is multiplied? This is shown by what? This is shown by exponent. The standard format is written like this. The main number which is being multiplied is known as base, and how many times that number is being multiplied, 2, 3, 4, etc., that is known as what? Exponent or power. Now, like everything is a standard format, like instead of 5 we can have 4 to the power 8, 9 to the power 10, etc. The standard form of exponents and power is written as a to the power n. Here a can be any number, 1, 2, 3, 4 and so on, and n can be any power. It is written as a to the power n, where a is base and n is known as exponent. It should also be noted that if any number is written in such fractional form with any power, then both the numerator as well as the denominator are of same power. For example, if it is written 2 upon 4 to the power 8, that means it is equal to 2 to the power 2 to the power 8 and 4 to the power 8. That means since this number was written in fractional form, 2 by 4 raised to the power 8, so here the numerator as well as the denominator both will be equal to power 8. Thus we can conclude that -1 whenever will be with an even power, the resultant will be positive, whereas -1 if it will be with an odd power, the resultant will always be a negative value. The number in form of -1 to the power, either even or odd. For example, -2 to the power 4. It can be written as -2 into -2 into -2 into -2. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. Now minus into minus plus, plus into minus minus, minus into minus plus. Answer will be 16. Whereas if we write it as -2 to the power cube, it will be written as -2 into -2 into -2. 2 into 2 4, 4 into 2 8. Now see, minus into minus plus, plus into minus minus. Answer is what? -8. That means the number, if the base is of minus sign with an even power, resultant will always be positive, whereas the number with base as negative value but power odd, the resultant will always be with a negative value. Let's see a next topic, reciprocal of powers.
and powers with negative exponent. So far we read and understood that if it is written, any number is written in form of a power cube, we write it as a into a into a power 4, we write it as a into a into a into a. But what if a question comes like this, a to the power minus 1? When we have a number with a negative value or say negative power, we first write it in a positive manner. So if we see a number a to the power minus 1, we simply write it as 1 upon a to the power 1. Now since 1 here, it will be value equal to a only, we write it as 1 to the power a, 1 upon a. Or if it is given a power minus 3, we will write it as 1 upon a power 3. Now always remember, जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर पावर में आए लाइक a की पावर माइनस 3, तो हमको सबसे पहले उसको पॉजिटिव में लिखना है. कैसे लिखना है पॉजिटिव में? सिंपली हम उसी नंबर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं विथ पावर पॉजिटिव. दैट मीन्स द स्टैंडर्ड फॉर्म विल गो like this: a to the power minus m will be written as 1 upon a to the power m, where a should not be equal to 0. Why a should not be equal to 0? Because anything upon 0, it becomes indeterminate. For example, 10 to the power minus 5, it will be written as 1 upon 10 to the power 5. जो नेगेटिव में दी है पावर, हम उसी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे बट विथ पॉजिटिव. जैसे ही वो पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, इट बिकम्स पॉजिटिव. सो दिस इज द वे. अगर कोई भी a पावर माइनस m के फॉर्म में दिखे, सिंपली राइट इट एज 1 अपॉन a टू द पावर m, एंड आफ्टर देन इट इज एज वी वर डूइंग लाइक 1 अपॉन 10 की पावर 5, 1 upon 10 into 1 upon 10 into 1 upon 10 and so on. Understand it like this: if it would have been given 10 power 2, we would have written it 10 into 10. Now since if it is given 10 power minus 2, first write it in positive form, 1 upon 10 square, then 1 upon 10 into 1 upon 10. And why we are doing this? Because हमें हमेशा पावर को पॉजिटिव फॉर्म में करना रहता है. So this was power with negative exponent, like 2 power minus 2, 1 upon 2 square, or 3 power minus 4, it will be 1 upon 3 to the power 4. But what if we are getting question in such format like 2 upon 4 to the power minus 8, or minus 1 upon 2 to the power minus 10. Now see what's the difference. Here we were having a single number, यहाँ पे बस एक नंबर है और यहाँ पे वही नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है. पावर यहाँ पे भी नेगेटिव थी, पावर यहाँ पे भी नेगेटिव है, पावर यहाँ पे भी नेगेटिव है. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तीनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो बेस है वो केवल एक सिंपल न्यूमरेटर है पॉजिटिव, यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और यहाँ पे न्यूमरेटर यहाँ पे भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है बट न्यूमरेटर एक माइनस वैल्यू के साथ है. हाँ, पावर तीनों में कॉमन है, माइनस माइनस माइनस. अभी जो हमने पढ़ा पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, यहाँ पे हमने इसको समझा. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ पावर, व्हेन क्वेश्चन आर इन सच फ्रैक्शनल फॉर्म, पावर है माइनस, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस. लाइक we'll understand by these example. The first is 2 upon 4 minus 8. Now एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक सिंपल रूल, जब भी पावर माइनस में दिखे, सबसे पहला कंसेप्ट जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि हमको इस पावर को पॉजिटिव में बनाना है. नाउ सपोज इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन 2 to the power minus 8, हम इसको लिख सकते थे सीधे 1 upon 2 की पावर 8. बट अब क्या है, यहाँ पे दिया है 2 upon 4 की पावर minus 8. So in order to make this negative power as positive, simply do the reciprocal. जो नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 upon 2 to the power 8.
अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, पावर नेगेटिव है, तो क्या मैंने बताया अभी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट मेक द पावर पॉजिटिव। और पावर कैसे पॉजिटिव बनेगी, सिंपली उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लो। क्या आ गया, 4/2 की पावर 8। नाउ वी कैन राइट इट एज 8 टाइम 4/2 इंटू 4/2 एंड सो ऑन। बट अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए देखें, सो 2 इंटू 2 इज वॉट, 4। ये सिंपल हो गया, 2 की पावर 8। नाउ वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही और 2। नाउ 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256। दैट मीन्स दिस विल बी अ फाइनल आंसर। ये तो था एक फॉर्मेट। फर्स्ट केस क्या था, फ्रैक्शनल फॉर्म में था, पावर नेगेटिव थी लेकिन नंबर पूरा पॉजिटिव था। अब देखते हैं सेकंड केस। यहाँ पे देखो, फ्रैक्शनल फॉर्म में है लेकिन माइनस भी है, पावर भी माइनस में है। तो सबसे पहले रूल क्या बताया मैंने अभी कि पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है। हाउ पावर विल बी पॉजिटिव, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर लो। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3/1। पावर बन गई क्या, 4। बट यहाँ पे क्या दिया है, माइनस। ये माइनस साइन रहेगा, ये तो सिंपल है। अगर हम इसकी बात करें रेसिप्रोकल, इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1/3, इट विल बी व्हाट, -3/1। साइन तो वहीं पे रहेगा, -3/1 टू द पावर 4। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। ये आ गया हमारा आंसर 81। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ठीक है ये सब तो समझ में आ रहा है, अब ये माइनस वाला कंसेप्ट क्या है। रिमेंबर आई टोल्ड यू हियर कि अगर -1 के फॉर्मेट में कोई नंबर है, वो भी ऑड पावर के साथ, आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में। सेम चीज़ -1 के फॉर्मेट में है, पावर क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। 81, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। दिस, ये मैंने भी आपको पिछला वाला कंसेप्ट इसलिए समझाया ताकि ये मत कंफ्यूज होना कि नेगेटिव पावर सर बार बार बोल रहे हैं, वो तो अभी पहले ही भी बताया था। तो वो -1 के फॉर्मेट में बताया था। -1 के साथ अगर कभी भी कोई भी पावर आपको इवन या ऑड दिखे, द फाइनल प्रोडक्ट अगर इवन है पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल, -10/17 पावर -3। नाउ सबसे पहली चीज़ क्या है, हमको इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। चलो इसको पॉजिटिव बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, -17/10 पावर हो गई पॉजिटिव। सो इट विल बी रिटन एज -17/10 इंटू -17/10 इंटू -17/10। नाउ दिस यू कैन सॉल्व, it will be equal to -4913/1000। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द रेसिप्रोकल। अब एक बार जल्दी से अगर कंक्लूड कर लें, ओके, तो अब एक बार जल्दी से कंक्लूड कर लें। टॉपिक क्या था हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ पावर्स और पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमको क्वेश्चन दो फॉर्म में मिल सकते हैं। एक हमको क्वेश्चन मिल सकता है 4 पावर -2, इसको कैसे लिखेंगे। और दूसरा हमको अगर मिल गया फॉर एग्जांपल 2/5 माइनस, इसको कैसे लिखेंगे। या फिर -3 पावर -14, इसको कैसे लिखेंगे। या फिर -4 की पावर 9 टू दी पावर -19, इसको कैसे लिखेंगे। ये हम एक बार फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, मतलब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनलाइज हम एक बार इन चारों को कर, ओके। नाउ अगर क्वेश्चन है 4 पावर -2, पावर किस में है, नेगेटिव में, सिंपली कैसे बना लेंगे इसको पॉजिटिव, 1/4 स्क्वायर। सिंपल रेसिप्रोकल करना है, 1/4 स्क्वायर। ओके, नाउ 2/5 की पावर -6, बट ये तो सिंपल था कि इसको सॉल्व करना है। बट रिमेंबर अगर क्वेश्चन है दैट इसका लिखो रेसिप्रोकल, दैट मीन्स सपोज क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इनवर्स, मतलब सिंपली क्या, 1/। ध्यान से समझो, क्वेश्चन अगर सिंपल मान लो दिया है बस इतना,
4 पावर -2, यू नीड टू सॉल्व इट। तो सबसे पहला रूल क्या है, पावर को हमको पॉजिटिव बनाना है। सो वी विल राइट इट एज 1/4 स्क्वायर, 1/4 into 4 that is 1/16 आंसर। बट if the question comes that you need to find its reciprocal, then you will do what? Reciprocal मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के 1/, you will write it as 1/4 पावर -2। अब पावर को हम कभी नेगेटिव में तो छोड़ेंगे नहीं, तो पावर को हमको क्या करना है, इन्वर्स। अब पावर कैसे इन्वर्स में जाएगी, अगर हम इस चीज का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, दैट मीन्स व्हाट, 4 पावर 2। नाउ क्वेश्चन कम कि सर ये कैसे हो गया, भाई कोई चीज़ अगर रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अपोजिट, तो 4 पावर -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 की पावर -2। अब क्योंकि हमको पावर को वापस से पॉजिटिव में बनाना है, तो अगर हम इसका दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, दैट मीन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 16। सो ये दो चीज़ें याद रखना। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 पावर -6, सिंपल कंसेप्ट। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर तो बोल रहा है कि नॉर्मल इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें नॉर्मल देखते हैं, 2/5 पावर -6, पहला कंसेप्ट क्या है, पावर को हमको बनाना है पॉजिटिव। पावर कैसे बनेगी पॉजिटिव, 5/2 पावर 6 बन गया पॉजिटिव। बट अगेन अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/, तो हाउ वी विल राइट इट, वी विल राइट 1/2/5, पावर कितनी है, -6। अब पावर कभी नेगेटिव में तो रहेगी नहीं, सो हाउ वी विल राइट इट, वी विल राइट इट लाइक दिस, 2/5 पावर 6। मैंने क्या किया, ये -6 को मैं ऊपर लेके गया तो ये बन गई पॉजिटिव, तो क्या हो गया, 2/5 की पावर 6। इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, 2/5 इंटू 2/5 टिल 6 टाइम। ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये सिंपली क्या है, रेसिप्रोकल निकाल रहा हूँ, और ये मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/, ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 की पावर -14। नॉर्मली अगर इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/-3 बन गई पावर पॉजिटिव। अगर इसी का रेसिप्रोकल बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/-3 की पावर -14। अब पावर नेगेटिव में तो रहेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -3 पावर 14। समझना, जब भी रेसिप्रोकल की बात होगी तो रेसिप्रोकल में हम पहले इस चीज़ को, इसी सेम क्वेश्चन को लिखेंगे 1/। अब 1/, लिख रहे हैं तो पावर तो अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन हमको क्या करना है, पावर को बनाना है पॉजिटिव में, इसलिए हम दोबारा से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब पावर आएगी पॉजिटिव में। एक लास्ट फॉर्मेट और देख लेते हैं, -4/9 पावर -19। अब सीधे अगर बोला है रेसिप्रोकल तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-4 पावर, सॉरी -1/-4/9 पावर -19। अब इसको, क्योंकि पावर नेगेटिव में तो रहेगी नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, -4/9 पावर 19। सो ये है रेसिप्रोकल और नॉर्मल सिंप्लीफाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ वी सी टू द एक्सरसाइज, क्वेश्चन इज गिवन -64/125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो 64 ये किसके टेबल में आ सकता है, 8 × 8, ये तो 64 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, 4 की पावर हो सकता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64, ठीक है, क्यूब है, हो सकता है, लेकिन हमको साइन भी देखना है साथ में, तो ये ऑप्शन भी फिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया माइनस। अब हमको पता है कि अगर माइनस के साथ लाइक -1 इंटू ऑड पावर, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ऑड, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, ऑड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4/5 का क्यूब।
वाई अगर इसको एक्सपांड करेंगे क्या होगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -64 upon 125. That means option C will be the answer. Next question is product of squares of 2/3 and 1/7. See, square मतलब पहले इसका square करो. So what will be the square of 2/3? 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 upon 9 into 1 upon 49. हमने दोनों क्वांटिटीज़ का स्क्वायर कर लिया. अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो कोई चीज़ कट तो हो नहीं सकती. सो 4 into 1 will be 4 and 9 into 49 will be how much? It will be equal to 441. That means option number D. Next question is value of x in 3 power x equal to 81. Now see, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है. दिस इज द क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. RHS में देखो 81 ये 3 के मल्टीपल में है. वी नो दैट 3 to the power 4 is equal to 81. Why? See, 3 into 3 into 3 into 3. 3 into 3 9, 9 into 3 27, and 27 into 3 is what? 81. So क्या लिख सकते हैं हम 81 को 3 power 4. इसको अगर हम प्रॉपर वे में और सिंप्लीफाई करें सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 power x इक्वल टू 3 power 4. अब दोनों के बेस सेम हैं तो x को हम 4 से इक्वलाइज कर सकते हैं. दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 4. दिस विल बी अ आंसर. अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि LHS और RHS दोनों में ही बेस सेम थे. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता 3 power x, यहाँ पे होता 4 power समथिंग, तब ये इक्वलाइज नहीं हो सकता था. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट. वेरी सिंपल, -3/7 क्या है, बेस 5 क्या है, एक्सपोनेंट. सिमिलरली 3 upon -5 बेस -5 एक्सपोनेंट, -1 बेस 36 exponent. Now our next question is express in exponential form. So simply see how many times the number is being multiplied. 2/3 it is multiplied 4 times. So 2 upon 3 to the power 4, 1 2 3 4. 4 upon -7, how many times this number is multiplied by itself? 4 times, 1 2 3 and 4. So answer will be 4 upon -7 power 4. Simple. You simply need to see that how many times the number is being multiplied, and the same number will become its power. Now next question is express as a rational number. Now what are rational number? Number which are written in the form of p upon q. So we need to simplify it. Simplify means इसको हम elaborate करेंगे. Now 4/3 square, it can be written as 4 upon 3 into 4 upon 3. 4 into 4 16, 3 into 3 9. This both they cannot be eliminated, so this will be our answer. Let's see, -5/4 to the power 3. Now before solving, can you tell the answer, it will come in positive or negative? The answer will come in negative. Why? Because -1 to the odd power, the resultant will always be a negative value. See, -5/4 into -5/4 into -5/4. 5 into 5 25, 25 into 5 125, 4 4 just 16, 4 just 64, minus minus plus plus minus minus. This will be a final answer. Now if you are confusing that why I was saying -1 into c, this -5, it can be written like this also, -1 into 5. This minus sign, for understanding, we can write it like this, and we know minus to any power, okay, that means odd power, not any power, odd power, resultant will be negative. If even power, resultant will be positive. Now let's see next question. Write the reciprocal. -5/8 to the power 21.
we need to do the reciprocal to -5/8. इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 8/5. That means -8/5 power 21. Second, -2 power cube. What will be the reciprocal? 1/2 power cube, and don't forget the sign. Third, 4/5 power 2. The reciprocal will be 5/4 square. Now our next question is, show that -3/4 power cube is equal to -27/64. See, in such type of question we need to verify that the LHS and RHS, both of them are same. So we need to pick up that portion, either LHS or RHS, which is in exponential form. मतलब हम उसको पिक करेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ताकि हम उसको इलेबरेट करके देख सकें कि वो इसके इक्वल है कि नहीं. और या फिर हम ये भी कर सकते हैं, हम इसी इलेबरेटेड फॉर्म को पिकअप करें और देखें क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इन शॉर्ट, LHS और RHS सेटिस्फाई होने चाहिए. सो लेट्स सी. अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, सो इट विल बी -3/4 into -3/4, write it here, LHS, into -3/4. 3 into 3 9, 9 into 3 27, minus minus plus plus minus minus upon 64. So yes, -27/64, it is equal to RHS. Hence proved. Since LHS is equal to RHS, it is equal to RHS, our answer is proved. The last question of this exercise, evaluate and find the reciprocal. That means first we need to solve it, and whatever the answer is coming, we need to do the reciprocal. So first let's solve. It can be written as 3 into 3 9 into 3 27, 7 into 7 49 into 7, that means 343. So this is our evaluation. Now as per the question, the reciprocal will be just opposite. So -27/43, its reciprocal will be -343/27. This is our final answer. What we did, we simply solved it, and जो भी आंसर आया हमने उसका जस्ट क्या कर दिया, उल्टा. दैट मीन्स रेसिप्रोकल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/5. So first solve it. 1 2 3 4 5. So let's see. 6 into 6 36. 36 into 6 216 into 6 1296 into 6 7776. Now this is the evaluation. The reciprocal, simply 1/7776. This is our answer. With this we come to an end of this exercise. Thank you.